Hello students, today we will learn about decimal fraction. Now in decimal fraction, firstly what we are going to see, we will see comparison of decimal fraction. Now what is meant by decimal fraction or how to compare the decimal fraction? Decimal fraction को compare करने के लिए firstly you should know about like decimal fraction and unlike decimal fraction. So see, suppose 3.99 and 4.99. Now see this 3.99, 4.99. After the decimal point, there is a two places. After the decimal point, there is a two places. That means what? Here also two place, here also two place. Don't think about the number before the decimal point. We have to think about the number which is after the decimal point. So after the decimal point, two number is there. After the decimal point, two number is there. That means what? These are called like decimals. Like decimals. See, suppose another example 99.8 and suppose 350.7. This is also like decimals. Like why it is like decimals? Because decimal point के बाद सिर्फ एक डिजिट है और यहाँ पे भी एक डिजिट है. That's why they are called as a like decimals. Unlike कब होते हैं? जब decimal के point, suppose एक example है 8.75, another example है suppose 8.9. Now see यहाँ पे decimal के बाद दो points है, यहाँ पे एक ही है, तो ये क्या हो गए? Unlike हो गए. अब इनका क्या करना है? हमें पहले comparison देखना है. How to compare this? Now see in the first example 3.35 and 3.30. Firstly हमें उनके जो नंबर जो प्लेस वैल्यूज है वो पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूं 480.9763, राइट. सो हाउ वी कैन रीड दिस नंबर 480.9763. व्हेन वी रीड दिस नंबर लाइक दिस, बट उसकी जो प्लेस वैल्यू वो देखो कैसे होती है. इसकी प्लेस वैल्यू है 0, इसकी है 0 की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100. दैट्स व्हाई इट्स 480. तो ये हमने अभी तक पढ़ा है अप टू 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड. वी हैव लर्न दिस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अब्जा, 10 अब्जा. अप टू देयर वी हैव लर्न. बट डेसिमल पॉइंट के बाद इस साइड का जो प्लेस वैल्यू होती है वो कैसे होती है? तो प्लेस वैल्यू कैसे होती है? देखो ये होती है 10th प्लेस. 10th TENTH 10th प्लेस. सिर्फ क्या करना है? आपको TH लगाना है. 10th मतलब इसकी प्लेस वैल्यू होती है 9/10. ये 7 की होती है 7/100. मतलब ये जो सेकंड नंबर होता है, फर्स्ट नंबर की प्लेस वैल्यू है 10, सेकंड नंबर की 100. देखो पहले की 10, देन 100, इसकी 100, इसकी होती है 1000, 6/1000. इसकी होती है 10,000, 3/10,000. ऐसी इसकी प्लेस वैल्यू. तो अभी इसकी वैल्यूज निकाली हमने और वो भी एक कन्वर्जन है दैट वी विल सी इन अनदर वीडियो. बट इसकी प्लेस वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर आपको पता है वंस, 10, 100, 1000. इस साइड कैसे होता है? यहाँ पे वंस नहीं होता, डायरेक्टली होता है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, like that way, right? So in when we are comparing the number, जब हम नंबर कंपेयर कर रहे होते हैं, that time what we have to do when we are comparing the number, we have to compare the place value. Firstly हमें क्या कंपेयर करना है? Firstly we have to compare this whole number. मतलब डेसिमल पॉइंट्स के पहले वाला जो नंबर है वो कंपेयर करना है. अगर वो दोनों नंबर सेम है then we have to think for the decimal number. See in this example यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है डेसिमल से पहले, लेकिन वो दोनों भी इक्वल है. Now वंस प्लेस दोनों की सेम है, फिर हम क्या जाएंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद जाएंगे. डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस, यहाँ पे भी 10th प्लेस 3 है, यहाँ पे भी 10th प्लेस 3 है, सो दे आर अगेन इक्वल. देन हम जाएंगे 100th प्लेस पे. 100th प्लेस यहाँ पे 5 है, 100th प्लेस यहाँ पे 0 है. नाउ सी 100th प्लेस में डिफरेंस आता है. वंस प्लेस 10th प्लेस, वंस प्लेस 10th प्लेस दोनों की सेम है. चेंज क्या है? चेंज देखो यहाँ पे चेंज है 5 and 0. Now 5 and 0, which is the greater? 5 is greater. That's why this decimal fraction is greater, and this is called as comparison. Comparison में हम क्या कर रहे हैं? Which is a greater one, which is a smaller one, or which are they equal, or are they equal?
that we are going to see. Here again the same. देखो पहले हम देखेंगे 66 है, यहाँ पे भी 66 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, right? So we will make this like this. Now 10th place, दोनों की 10th place 9 है, दोनों की 10th place 9 है. 100 place यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 100 place 3 है. 100 place यहाँ पे कुछ भी नहीं है. One more thing we have to see. जैसे मैंने आपको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन और अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन बताया था, अगर सपोज 9.8 है, अगर मैंने 9.80 लिखा या फिर 9.800 लिखा या फिर 9.8 कितने भी इसके ऊपर जीरो लगाए, तो इन सब की जो वैल्यू है वो एक ही है. इन सब फ्रैक्शन, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, इन सब डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू एक ही है. इसके ऊपर मतलब क्या है, देखो सपोज हमने 5 लिखा, सपोज नंबर 5 लिखा, ओके दिस इज द 5, इसके राइट साइड में 0 लिखा तो ये 50 होता है, और एक राइट साइड में 0 लिखा तो 500 होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में 0 लिखा तो 500 है, अगेन 500, अगेन 500, अगेन 500. दैट मींस व्हाट, देयर इज अ नो वैल्यू ऑफ दिस जीरोस, देयर इज अ नो वैल्यू ऑफ दिस जीरो. इस जीरो को कुछ वैल्यू नहीं है, इस जीरो को कुछ वैल्यू नहीं है. जब होल नंबर होता है तो उसके राइट साइड में हम नंबर देते हैं तो उसको वैल्यू होती है, इस साइड में वैल्यू नहीं होती. इन द सेम सेंस डेसिमल में डेसिमल नंबर होता है, उसके बाद जो नंबर होता है उसके बाद जितने भी जीरो लिखो आप उसको वैल्यू नहीं होती. इसका मतलब क्या है, देखो मैंने एग्जांपल किसलिए बताया, देखो कि यहाँ पे था 66.9, यहाँ पे था 66.93, मतलब यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो 100 प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 प्लस 2 9 मतलब 0 है. 100 plus is 3, here 100 plus is 0. That means what? 3 is greater. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 होता है. So 3 is greater. That means what? 66.93 is greater than 66.9. 66.93 is greater than 66.9. Now in the same next example. Now see in this example. यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है, डेसिमल पॉइंट से पहले यहाँ पे 5 है, सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद की देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे व्हाट वी हैव टू सी ओनली दिस नंबर, द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट. 0 5 इज ग्रेटर, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट 3.08 3.80, डेसिमल पॉइंट्स के पहले नंबर सेम है, 10 प्लस 0 है, 10 प्लस 8 है, 8 इज ग्रेटर, सो दिस इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन. 3.80 ग्रेटर. यहाँ पे देखो 43.92 43.902 43.902, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, 4 है, तो दोनों ये सेम है. देन पॉइंट 10 प्लस 99 सेम, 100 प्लस 2 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 is greater. That means what? This number is greater. Sometimes what happen? You may think that स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा कि अरे यहाँ पे तो 92 है, यहाँ पे 902 है, तो 902 बड़ा होगा. दैट्स नॉट राइट. अंडरस्टूड. वो सही नहीं है, ये स्मॉलर है. क्यों? क्योंकि देखो आपने अगर 10 प्लस कंसीडर की तो 10 प्लस 9 है, 10 प्लस 9 है, यहाँ पे 100 प्लस 2 है, यहाँ पे 100 प्लस 0 है, मतलब 2 is a greater. That's why this fraction is greater. Don't be confused. Okay, now next number 70.83 70.83. देखो 70.83 70.830 है, 830. देखो डेसिमल पॉइंट्स के पहले नंबर सेम, दोनों सेम है. यहाँ पे 8 है, 10 प्लस, यहाँ पे भी 10 प्लस 8 है, यहाँ पे 100 प्लस 3 100 प्लस 3, यहाँ पे 1000 प्लस 0 कुछ नहीं है, यहाँ पे 1000 प्लस 0 है, लेकिन कुछ नहीं मतलब उसके जैसा हम कितने भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. मतलब क्या, ये दोनों नंबर क्या है, सेम है. ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर 19.07 19.007, ये नंबर दोनों सेम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, तो 7 is greater, so this fraction is greater. Then in this fraction 0.008 0.080, so decimal point के बाद 008 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, so 8 is greater
दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अगेन द सेम यहाँ पे 3 9, यहाँ पे भी 3 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। मतलब ये या किया या फिर नहीं किया, इस 0 को कुछ वैल्यू नहीं है, अगर हमने ये 0 रफ कर दिया ये तो दोनों सेम हो जाएंगे, दैट मींस व्हाट दे आर इक्वल। सो ये हो गया उनका कंपैरिजन। आप सबको ये कंपैरिजन समझ में आया हो तो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में एक एग्जांपल लेंगे जो है ऑर्डर। इन ऑर्डर वी हैव टू राइट डेसिमल फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमें असेंडिंग लिखना है या फिर डिसेंडिंग। अब असेंडिंग मतलब क्या होता है, देखो असेंडिंग मतलब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा बच्चा खड़ा है, उससे बड़ा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उससे भी बड़ा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उससे भी बड़ा बच्चा यहाँ पे खड़ा है। So this is called as ascending order. मतलब पहले छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा, that is called as ascending order. And descending order is क्या opposite? मतलब सबसे पहले बड़ा बच्चा खड़ा है, then smaller one, then smaller one, then smaller one and smaller one, like that. मतलब पहले बड़ा बच्चा आएगा फिर छोटे छोटे हो जाएगा, यहाँ पे छोटा फिर बड़ा बड़ा। तो वैसे हमें नंबर का लिखना है, ascending order है descending order। आपने होल नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा है, यहाँ पे क्या करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। सो असेंडिंग ऑर्डर कैसी होगी, आपको पहले लिखना है स्मॉलर वन, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, 30 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 0 सबसे छोटा है, सो दैट इज अ स्मॉलर वन। 0.37 इज ए स्मॉल वन। आपने कॉमा लिखा या फिर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ये सिंबल लिखा था कि ये छोटा है, इससे बड़ा कौन है 0.37 से। अब ये तो चला गया चलो फॉर एग्जांपल, ये तो चला गया, बचा कौन से ये और लास्ट वाला नंबर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, यहाँ पे 30 है, सो ऑब्वियसली 30 इज ग्रेटर, सो डोंट थिंक अबाउट दिस नंबर, थिंक अबाउट दिस टू नंबर्स 3.5 3.05। तो देखो इनका कंपैरिजन, पहले 0 0 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 एंड 0 5 इज ग्रेटर, 5 ग्रेटर है, मतलब ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, मतलब ये आएगा पहले 3.05 3.05, 0.30 से बड़ा 3.05। अब इससे बड़ा कौन है, ये है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, दैट मींस व्हाट इससे बड़ा है 3.5 एंड इससे भी बड़ा है 30.5। So this is called, this is the ascending order. In this ascending order we wrote firstly smaller one, then bigger 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 and lastly the biggest one. In a descending order में आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ा वाला लेना है। descending order इसका रिवर्स लिखा तो भी चलेगा, मतलब 30.5 is a greater number, most greater number, उससे छोटा है 3.5, smaller than this is 3.05, smaller than this 0.37. So this is the ascending order, descending order. So यहाँ पे here in this example we have considered 4 number only. So when there is a 5 number, 6 number, 7 number or several numbers are there, then also we can solve like this way, ascending order and descending order. Okay, now we will see fundamental operation of decimal fraction. Decimal fraction की fundamental operation. So first operation is addition. So what we have to do, we have to add some decimal fraction. So 3.7 plus 99.74, 3.7 plus 99.74, इन दोनों की हमें एडिशन करनी है। So see, one thing you should keep it in mind when you are going to add two decimal fraction or more decimal fraction. When you are adding decimal fraction, one thing you should keep it in mind, the decimal point should below the decimal point। मतलब एडिशन करते टाइम या फिर आप जब लिखते हो तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्या करेंगे, 3.7 लिखोगे प्लस 99.74, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट्स के पहले 99 है, so we wrote 99 and after the point we have 74, so we wrote 74 and now we have to do addition. Now when you are doing addition, think that there is a 4, this is a 4, इस 4 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 0 कैंसिल कर देगा, कुछ नहीं, मतलब इसके ऊपर मैंने जैसे आपको बोला था, इसके ऊपर कितने भी 0 लिखो, इसकी वैल्यू 3.7 ही रहने वाली है, दिस वैल्यू विल नॉट चेंज। सो आप कितने भी 0 लगा सकते हो या फिर इरेज कर सकते हो, ये नहीं कंसीडर किया तो भी चलेगा। तो 0 हमने अगर कंसीडर किया था 0 plus 4, so 4 will come, 7 plus 7 14, अभी यहाँ पे 14 आया, so 4 लिखने का 1 कैरी इधर दे देगा, ओके, एंड देन 3 plus 9
12 plus 1 13, so 13, 3 will here 1 carry. यहाँ पे भी कुछ नहीं, ऊपर मतलब 0 है, 0 plus 9 9, 9 plus 1 10, so answer is 103.44. हमने क्या किया, सिंपल एडिशन की, और इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट देना है. Okay, now second example. In the second example, 12.11 plus 12.111 plus 13.1 plus 0.1111. Again here the same. पहले हम लिखेंगे 12.11, फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट. Before the decimal point we have 12, after the decimal point we have 111. So we wrote 111 plus decimal point के नीचे decimal point, before 13, after 1, plus 0.1111 point, decimal point below the decimal point, before we have 0 and after we have 100. जैसे हम एडिशन करने के लिए एक के नीचे एक लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है, नंबर एक के नीचे एक लिखना है, फिर क्या करना है, इसका एडिशन. अभी देखो इस 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 0 कंसीडर करो. सो यहाँ पे 1 है, 0 0 0, तो 0 plus 0 plus 0 plus 1, आंसर इज 1. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 है, यहाँ पे भी 0 है. सो 1 plus 1 2, यहाँ पे 1 plus 1 plus 1, सो 3, 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4. डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे कैरी नहीं आता है, यहाँ पे कैरी आया था 7 plus 7 14, तो वो कैरी हमें अगले टर्म में देना है. ओके, एंड देन 2 plus 2 4 plus 3 7, 7 plus 0 7, and 1 plus 1 plus 1 3. So directly हमने उसकी एडिशन कर दी. Another example, suppose third number example, 9 plus 88.7, 9 plus 88.7. So हम लिखेंगे यहाँ पे 9. अब यहाँ बोलेंगे सर इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो कौन सा भी नंबर देखो, सपोज हमें 9 लिखना है, तो आपने 9 ऐसे लिखा, 9.0 लिखा, 9.00 लिखा, 9.000 लिखा, या फिर कितने भी जीरो लिखो, इन सब का मतलब 9 ही है. मतलब 9 पॉइंट लिखो और उसके बाद कितने भी जीरो लिखो, दैट इज 9 ओनली. मतलब इसको मैंने ऐसे किया तो भी चलेगा, 9.0, मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं था, तो ये पॉइंट कैसे आ गया, ऐसे आ गया. अब पॉइंट के नीचे पॉइंट दिया, उसके पहले है 88, सो 88 plus 7. ओके, एंड वी आर गोइंग टू एडिशन. नाउ 0 plus 7 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 plus 8 17, carry 1, 8 plus 1 9. So answer is 97.7. So this is the addition. Okay, now second fundamental operation is subtraction. Now we are going to do subtraction of two decimal fraction. We are going to subtract smaller fraction from bigger fraction. So see, again the same thing, आपको पहले fraction लिखना है, decimal fraction 99.8 minus decimal point के नीचे decimal point लिखना है, उसके पहले है 9, तो इस 9 के नीचे आएगा 9, and after that 432. See, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है. आप कंसीडर करना है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके, इसके ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए मैंने 0 लिखा, because it has only 8. Now it is very easy for subtraction. 0 minus 8 is not possible, 0 minus 2 is not possible. Take one borrow. So यहाँ से हमने एक borrow लिया, तो ये हो गया 10. 10 minus 2 8. Again 0 minus 4, 3 plus 1 4. 0 minus 4 is not possible, take one borrow. So 10 minus 4 6. Now 8 minus 5, 4 plus 1 5. 8 minus 5 3. Decimal point के नीचे दिया decimal point. 9 minus 9 0, and यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है. 9 minus 0, आंसर इज 9. तो आपने ये 0 अगर यहाँ पे लिखे या फिर नहीं लिखे, इसका कुछ लेना देना नहीं है आपसे, या फिर अगर आपने नहीं लिखे तो भी आपको क्या करना है, कंसीडर करना है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो 66. जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे 66 में डेसिमल पॉइंट है ही नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट होता है लास्ट में. अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा इसका नीचे वाला डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 59. सो ये देयर इज 59.827. नाउ सब्ट्रैक्शन. ओके, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब है 0 0. ओके, हमने उसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन किया. नाउ सी 0 minus 7 not possible, take one borrow. 10 minus 7 3. 0 minus 3 not possible, take one borrow. 10 minus 3 7. Again 0 minus 9 not possible, take one borrow. अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब borrow इधर जाएगा. So 10 minus 9 1.
10 minus 9, 1. Now 6 minus 10, not possible, take one borrow. 6 minus 10, not possible. So we will take one borrow. So that will become 16. 16 minus 10, remember 6. 16 minus 10, remaining 6. And 6 minus 6, 0. So the final answer is 6.173. 6.173. Now last subtraction देखो 93.1 minus point नीचे point 65.10. सब्ट्रैक्शन करना है, ये जीरो के ऊपर कुछ नहीं, मतलब जीरो ही है. 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, point के नीचे point. 3 minus 5 not possible, so we'll take one borrow. 13 minus 5 8. 9 minus 7 9 minus 7 2. So answer is 28. So this is the subtraction. Third fundamental operation is multiplication. Multiplication of two decimal number. Two decimal number का multiplication करना है. So multiplication करते टाइम देखो क्या करना है आपको. Multiplication यहाँ पे नंबर है 38.432 multiplied by 2.8. When you are multiplying two number, decimal number, when you are multiplying two decimal number, one thing you have to understand, when you are multiplying at that time, don't think about the decimal point. मतलब क्या करना है आपको, सीधा नंबर लेना है 38432. मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट देने का नहीं, जब आप कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय 2.8 है तो पॉइंट निकाला तो 28 होगा, सो दैट इज 28. बस डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करने का नहीं है. और जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो बाकी के नंबर की, उसी तरह मल्टीप्लाई करो. सो पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 8 4 जा 32 34 carry 3, 8 8 जा 64 65 66 67, 8 3 जा 24 24 प्लस 6 30. तो पहले हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया. अभी क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन 2 टेंस प्लेस पे है इसलिए हमने एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लगाएंगे. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7. अब इसकी क्या करनी है, एडिशन. 0 प्लस 6 6, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 7 प्लस 8 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 7 10. ये आ गया मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ये सब करने का फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डेसिमल पॉइंट देने. तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 8 और 4 के बीच में है, यहाँ पर 2 और 8 के बीच में. नाउ सी डेसिमल पॉइंट दे दिए. अभी डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है. आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट एंड हियर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट. इन दोनों की एडिशन करनी है. 3 प्लस 1 4, राइट. मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए 3 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1. तो इन दोनों की एडिशन आती है 4. तो जो फाइनल आंसर आता है उस फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट देना है 4 डिजिट से पहले, या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आनी चाहिए. तो यहाँ पे 4 डिजिट आता है. सो 1 2 3 and 4. So decimal point is here. That means what आपका आंसर इसका मल्टीप्लिकेशन आया 107.60 और 6096. 4 के बाद क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है. तो डेसिमल पॉइंट आंसर में इस जगह देना है जिसके बाद 4 डिजिट होने चाहिए. तो ये आंसर आ गया 107.6096. ओके. अब इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम देखो कैसे पूछे जाते हैं. different types of word problem में ask you, but now one simple example. Cost of a school bag is rupees 480.35. Find cost of such a 15 bags. So इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे. वर्ड प्रॉब्लम में क्या बताया, सिंपली एक स्कूल बैग है, उस स्कूल बैग की प्राइस दी है 480.35. मतलब एक स्कूल बैग की, यहाँ पे अ स्कूल बैग बोला है. सो वन स्कूल बैग प्राइस इज 480.35. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच स्कूल बैग. मतलब हमने 15 स्कूल बैग खरीदे किए तो कितने पैसे देने पड़ेगा. ओके. कॉस्ट ऑफ 480.35. So we will find cost
of 15 school bag is equal to 480.35 मल्टीप्लाई बाय 15। हमें एक की प्राइस पता है 15 की निकालेंगे, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई। अभी क्वेश्चन आपको घुमा के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे पूछ जाएगा कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट की कॉस्ट इतनी इतनी है तो 10 शर्ट की कॉस्ट निकालो, या फिर आपको पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ शूज, कॉस्ट ऑफ शूज पेयर इज 480 तो 10 पेयर की निकालो, तो आपको सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन है, सो अगेन वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करो 480 एंड 35, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं देने का, और मल्टीप्लाई बाय 15 से हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डेसिमल पॉइंट कहाँ है नहीं देखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। ओके, वी नो द 15 टेबल, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52, 5 कैरी, 15 0 जा 0 प्लस 5, 15 8 जा 120, so 12 carry, 15 4 जा 60, 60 plus 12 72। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, फिर से एक बार चेक करो। 15 5 जा 51 जा 50, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60, 55 जा 75, 5 remain 7 carry, 15 3 जा 45, 45 plus 7 52, 5 carry, 15 0 जा 0 plus 5, 15 4 जा 15 8 जा 120, 0 here, 12 carry, 15 4 जा 60 plus 10 70 plus 2 72। so this is the answer। अभी क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, मतलब लास्ट में, मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, मतलब 0। so 2 plus 0 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। so the answer is 7,205.25 रुपीज। आप सिंबल करके बता सकते हैं, या फिर इसको आप नीचे वर्ड सेंटेंस में लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 15 स्कूल बैग इज रुपीज 7,205.25 रुपीज। मतलब 15 स्कूल बैग की अगर एक की प्राइस इतनी है तो 15 की इतनी होगी। ओके Okay, in multiplication there is some tricks are there, multiplication tricks of tens। multiplication tricks of tens मतलब देखो, सपोज नंबर है 48.92, इसको हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आता है 489.2। सपोज सेकंड एग्जांपल 48.92, इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया द आंसर इज 4892 या फिर 0 उसके लिए बाद में लिखा है या फिर नहीं लिखा, उसको कुछ मतलब नहीं। तो देखो ट्रिक्स में क्या पता चलता है, देखो अगर 10 है या फिर 100 है, 1000 है, लाख है, 10 लाख है, मतलब 1 और उसके ऊपर कुछ जीरोस है, देन इन दैट मल्टीप्लिकेशन उस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने टाइम आपको डायरेक्टली वो नंबर एज इट इज लिखना है। फिर याद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक 0 है, इसलिए ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक डिजिट शिफ्ट होगा राइट में। यहाँ पे 2 0 है 1 के ऊपर, तो ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अनदर एग्जांपल सपोज 4.98976 मल्टीप्लाई बाय सपोज 1000, तो यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होगा 3 डिजिट से 1 2 एंड 3, पॉइंट ये आएगा यहाँ पे, मतलब 4897.6 4897.6 आएगा, पॉइंट यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 zeros है। अनदर एग्जांपल सपोज 65.007 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो यहाँ पे 1 0 है वो एक के ऊपर, ये कब करना है, लेकिन सिर्फ ये ट्रिक्स कब यूज करनी है जब 1 और उसके ऊपर जीरोस है, मतलब 1 और 2 0 है, 3 0 है, या फिर कितने भी 0 हो, दैट टाइम यू हैव टू यूज। यहाँ पे सिर्फ एक 0 है तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे और आपका वो आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिवीजन। अब इसके लिए ये मेथड हमें यूज करना है डिवीजन में, इसलिए नेक्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन है डिवीजन। तो डिवीजन किसकी करनी है, देखो फॉर एग्जांपल 5.85 डिवाइडेड बाय 1.5, 5.85 डिवाइडेड बाय 1.5, जिसको मैंने ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, 5.85 in the form of fraction divided by 1.5।
1.5 इसको हमने पे डिवाइड करना है, 5.85 को 1.5 से डिवाइड करना है. So this 5.85 is a numerator, 1.5 is a denominator. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. ध्यान में रखो, when you are dividing decimal fraction, डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट हमें नहीं चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में से डेसिमल पॉइंट को निकालना है. तो देखो डेसिमल पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी 5.85 डिवाइडेड बाय 1.5. हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, मतलब ये होना चाहिए सिर्फ 15, ये होना चाहिए 15. सो ये 15 कब होगा, जब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से एक डिजिट यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब वी हैव टू शिफ्ट दिस डिजिट 1 प्लस राइट साइड. 1 प्लस राइट साइड शिफ्ट करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से डिजिट शिफ्ट करना है यहाँ पे. सो इसलिए हमें एक डिजिट शिफ्ट करना है राइट में, इसलिए हमें 1 के ऊपर सिर्फ एक जीरो लेना है, दैट इज 10. सो उसको किया, तो ऊपर का न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये 10 है तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, दैट इज 58.5. सो दिस इज अ न्यूमरेटर, दिस इज अ डिनोमिनेटर. अभी इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए सिंपल आप जैसे नॉर्मली डिवीजन करते हो, 50 is a divisor, dividend 58.5. and now do the division. 15 और 58, 15 के टेबल में 58 नहीं है, 51 जा 15. अब मैं टेबल लिख के बताओ, 51 जा 15, 52 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75. okay, now 58 is not there, but less than 58 45 is there. 15 3 जा 45, 8 minus 5 3, 5 minus 4 1. okay, अब क्या करना है, हमें ये 5 नीचे लेना है, लेकिन दिस 5 हमने 5 नेक्स्ट टर्म में आगे लिया, लेकिन ये 5 डेसिमल पॉइंट के बाद आता है. दिस 5 कम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, राइट, दिस 5 इज आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर लिया, इसलिए यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट देना है. अंडरस्टूड व्हाई वी टेक 5 डेसिमल पॉइंट हियर, बिकॉज़ वी टेक नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ये नंबर हमने नीचे लिया, तो वो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया. नाउ 15 के टेबल में 135 है, 15 9 जा 135, आंसर इज 0. सो इसका डिवीजन का मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर आता है दैट इज, या फिर आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पे पूरे इसमें ऐसा करके लिख सकते हो, 5.85 डिवाइडेड बाय 1.5 is equal to, the answer is 3.9. so such a, this is called as a division. okay, now we will see mixed example of decimal fraction. Means what, in one example we will see the several operations, several different 4 operation or pair operation or 2 operation in one example. This mixed problem we will see, 3 mixed problem we will understand. Now the first example is that